اور بریکنگ نیوز دیں گے، بتائیں ایران امریکہ امن معاہدے کے بہت قریب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امن معاہدے کو حتمی شکل دینے کا عمل آخری مراحل میں داخل ہو چکا، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اس کی تکمیل کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ پاکستان امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری کر رہا ہے۔ اس وقت کی اہم ترین خبر ہے، ایران امریکہ امن معاہدے کے بہت قریب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امن معاہدے کو حتمی شکل دینے کا عمل آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ پاکستان امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری بھی کر رہا ہے، جبکہ آئندہ ہفتے سے تکنیکی سطح پر گفتگو کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ معاہدے کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات بھی ہوں گے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا۔ پاکستان امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری بھی کر رہا ہے، معاہدے کو حتمی شکل دینے کے بعد دستخط کی تیاری کریں گے۔ توقع ہے کہ 24 گھنٹوں میں معاہدے کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ اس وقت کی اہم خبر ہے، توقع کی ظاہر کی گئی ہے کہ 24 گھنٹوں میں معاہدے کو حتمی شکل دے دی جائے گی اور معاہدے کو حتمی شکل دینے کے بعد دستخط کی تیاری بھی کی جائے گی۔ توقع ہے کہ 24 گھنٹوں میں معاہدے کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ اس وقت کی اہم ترین خبر ہے، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ توقع ظاہر کی گئی ہے کہ 24 گھنٹوں میں معاہدے کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم معاہدے کے پہلے سے کہیں زیادہ قریب آ چکے ہیں۔ مذاکرات کے لیے تعاون پر امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معاہدے کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات بھی ہوں گے اور معاہدے کو حتمی شکل دینے کے بعد دستخط کی تیاری بھی کی جائے گی اور توقع ظاہر کی گئی ہے کہ 24 گھنٹوں میں معاہدے کو حتمی شکل بھی دی جائے گی۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ ہم امن معاہدے کے پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں۔ توقع ظاہر کی گئی ہے کہ 24 گھنٹوں میں معاہدے کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ ایران امریکہ معاہدے کے بہت زیادہ قریب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امن معاہدے کو حتمی شکل دینے کا عمل آخری مراحل میں داخل ہو چکا، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسے تکمیل کا امکان ہے۔ پاکستان امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر چکی ہیں پروگرام اینکر خدیجہ راٹھور۔ خدیجہ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تعاون پر امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی معاہدے کے حوالے سے بھی بات کی گئی، الیکٹرانک دستخط بھی کرنے کا کہا گیا ہے۔ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی بالکل، ہمارا دیکھیں یہ ایک پاکستان کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ گلوبلی امن کی کوشش کر رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کے اقدامات کو سراہا جا رہا ہے۔ کئی بار ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ مائی فیورٹ فیلڈ مارشل اینڈ پرائم منسٹر، تو یہ ایک تعریف ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی کی گئی اور ساتھ ہی فیلڈ مارشل کی بھی کی گئی۔ اور اس وقت جو معاہدہ ہو رہا ہے، ایران بھی اس حوالے سے متحرک ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کوششوں کو سراہا جا رہا ہے۔ اگر چند دن پہلے کی بات کی جائے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایران امریکہ کی جانب سے ایران کے کئی شہروں پہ میزائل داغے گئے، واٹر پلانٹ پہ میزائل داغے گئے اور ساتھ ہی اسٹریٹ آف ہارمز پہ جو امریکہ کا اپاشی ہیلی کاپٹر ہے اسے بھی ایرانی ڈرون نے اٹیک کیا تھا، جس کے بعد یوں لگ رہا تھا کہ ایک بار پھر کشیدگی جو ہے وہ پھیل جائے گی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ نومبر اور دسمبر میں امریکہ کے اندر مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں خاصی کمی آئی ہے۔ ساتھ ہی جو ان کے 4 ریپبلکن سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی اس حق میں ووٹ دیا ہے کہ ایران کے ساتھ مزید جنگ امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا، یہ اسرائیل کی جنگ ہے۔ لیکن جو سب سے یہاں پر خاص بات ہے، اہم بات ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستان خطے میں امن کی بات کر رہا ہے اور لیکن اسپوائلرز کی جہاں تک بات کی جائے ہمارا تو اسے نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایران نے واضح کہہ دیا تھا کہ سیز فائر تمام فرنٹس پہ ہوگا انکلوڈنگ لبنان، لیکن اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی جا رہی ہے۔ لبنان کی کئی شہروں پہ ڈرون حملے کیے گئے، میزائل حملے کیے گئے، لیکن اگر اسرائیل اپنی جارحیت اپنی بربریت ختم کر دیتا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ معاہدہ بآسانی ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ کو بھی فیس سیونگ چاہیے۔ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی آئی ہے، 4 ریپبلکنز نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ووٹ کاسٹ کیا ہے اور ان کے جو اراکین ہیں پارلیمنٹ کے اراکین اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ووٹنگ ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات کو کم کیا جا سکتا ہے، محدود کیا جا سکتا ہے اور آنے والے جو صدر ہوں گے امریکہ کے وہ جے ڈی وینس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہی تمام سے صورتحال ہے۔ پاکستان جو ہے وہ امن کی کوششیں کر رہا ہے اور آئندہ دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ایک بڑا ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان آ سکتا ہے اور مذاکرات کا جو عمل ہے وہ جاری ہوگا۔ بالکل، خدیجہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اس وقت سینئر اینکر پرسن آفتاب مغیری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آفتاب، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔
आफ्ताब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से ये बयान दे दिया है कि हम जंग बंदी के करीब जा रहे हैं और ये तवक्को भी जाहिर की गई है कि 24 घंटों में मुआहदे को हतमी शक्ल भी दे दी जाएगी। बड़ा ब्रेक थ्रू आया है, क्या कहेंगे इस पर आप? बड़ी खबर और जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया जहां पर ईरान और अमेरिका जंग लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया माशी जंग लड़ रही है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि पिछले दिनों जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम मुआहदे को जो है हतमी शक्ल देने जा रहे हैं और मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। शायद इसी चंद घंटों में या चंद दिनों में जो है हम फाइनल जो है उसको जो है साइन करने जाए। फिर इशारतन उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, सवाल के जवाब में कहा कि ये हो सकता है कि ये मुआहदा जो है साइन करेंगी शायद जो है किसी यूरोप पे हो। मगर तय है कि अब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी अहम है और जो कि पाकिस्तान में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, जिसमें सिविलियन और असली क़यादत ने हमारा जो किरदार अदा किया है वो इस कितने समय पूरी दुनिया उसको सराह भी रही है और उसको अच्छी नजर से देख रही है। तो अभी जो कि हमारे वफाकी वजीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी साहब, वो आपको पता है कि कई दफा ईरान गए और वापस आए। फिर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मुसलसल जो है उन ईरानी जो है असगरी और सियासी क़यादत और मजहबी क़यादत को ऑन बोर्ड लिया हुआ था। तो इस वक्त कह सकते हैं कि बारहा जो है पाकिस्तान का न सही जो कोशिशें उसकी सराह जो की जा रही है और अमेरिका मगर जो है यूरोपीय मुल्कों से हटकर भी पिछले दिनों आपने देखा कि रूसी सदर पुतिन से जब सवाल किया गया कि पाकिस्तान और ईरान के मामलात पे और इंडियन सहाफ़ी ने तो उनको भी लाजवाब कर दिया था कि आप जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा, मगर ये तय है कि इस खित्ते में और बिलखुसूस पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उसको हम कदर की निगाह से देखते हैं। तो कहा जाए कि बीजिंग और जो है रूस और दीगर जो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक और दीगर यूरोपीय ममालिक, वो इस चीज पे अब बैठकर उस फैसले की मुंतजर भी हैं और मुंतजर हैं कि अब जो मुआहदा है वो इस्लामाबाद में हो या कहीं और हो, मगर कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान का जो किरदार है उस किरदार को देखते हुए कोई फैसला हो जाए जिससे जो है पूरी दुनिया इस जंग से निकल सके। तो मैं समझता हूँ कि अब जैसे कि बारहा पिछले दिनों आपने देखा कि अमेरिका और जो है ईरान के दरमियान फिर झड़पें हो गई थी और उसके साथ साथ फिर ईरान ने जो है वाज़ेह तौर पर कहा था कि इसराइल जो है मुआहदे की खिलाफवर्जी कर रहा है और लबनान और दीगर जगह पर जिस तरह से वो हमले कर रहा है तो उसको भी रोका जाए। तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कहा कि इसको फौरी तौर पर रोका जाए और हम दोनों चाह रहे हैं कि सीज फायर के साथ साथ जो है कोई फैसले की तरफ जाया जाए। तो अब लगे ऐसे रहा है कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि चंद ही दिन पर मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका की अगर ग्राउंड की बात करें तो मुसलसल जो अमेरिकन टीवी और अमेरिका में मौजूद जो हमारे एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे जब बात होती है तो वो तो यही कह रहे हैं कि अमेरिका, व्हाइट हाउस और पेंटागन चाह ये रहा है कि ये चंद घंटों में कोई फैसला हो जाए, क्योंकि इस वक्त मिडटर्म इलेक्शन भी करीब है और इसके साथ साथ अमेरिका में जो है गैस प्राइजेस के साथ साथ अगर देखा जाए कि वहां पे आम लोगों के दस्तरस से ब्रेड, अंडा और रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो महंगी होती हुई नजर आ रही हैं, जो बड़ा रास्त इस वक्त अमेरिकन अवाम के ऊपर ये बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो मुझे लग ऐसे रहा है कि इस वक्त जो है मिडटर्म में खासी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और खदीजा ने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कहीं ना कहीं जेडी वेंस जो है वो कमिंग प्रेसिडेंट यूएस हो सकते हैं, मगर तय है कि फैसला अवाम के वोट से होगा। मगर जो अब जो सूरत हाल प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका के लिए क्रिएट की है और फराई जंग में जो कूदे जो उसको इसराइल की जंग खुद अमेरिकन समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में प्रेसिडेंट ट्रंप और जेडी वेंस की खुद जमात को शायद उस तरह से अक्सरियत राय से वोट ना मिले। अगर मिड टर्म में भी वो हरा जाते हैं तो फिर जनरल इलेक्शन में यकीनी तौर पर जो है अमेरिका के लोग जो भी फैसला करें, मगर अब मुबसरीन और खासतौर पर अमेरिकन एक्सपर्ट जो इस वक्त करीबी इस तमाम माहौल को देख रहे हैं, उनका नुक्ता नजर बिल्कुल वाज़ेह है कि कमिंग इलेक्शन पे शायद क्योंकि वहां पे इस चीज पे वोट नहीं होता जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल और हिंदुस्तान में नफरत की बुनियाद पे वोट होता है, मगर वहां पर बहुत से हल्के जो है इन चीजों को गलत समझते हैं। वहां पे भी इंतहा पसंदी है, मगर उस निस्बतन
उससे हटकर जो है लोग जो है आजादाना माहौल में और आजादाना ख्याल में जो है वोट देते हैं। मगर अब गोरे और जो है काले और जो है मुसलमान और इंतहा पसंद की सोच रखने वाले इस जंग से है जो लाखों लोग, आपने देखा कि एक ही वक्त कई स्टेट्स में जो एहतजाज हुए, ये बहुत बड़ा जो है रेफरेंडम था प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए कि वो लोग नहीं चाह रहे कि वो ईरान के साथ जंग हो या किसी भी पराई जंग में जाया जाए। जी शुक्रिया आफ्ताब मुगेरी साहब। खतीजा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी हमारा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी खतीजा, ये भी वाज़ेह किया गया है कि आम मुआहदे के फौरी बाद अगले हफ्ते से जो तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हैं वो भी शुरू किए जाएंगे, तो किस सतह के मुज़ाकरात पॉसिबल हैं, ये बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो बात हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, निकात के अगर हवाले से हम बात करें तो उनका कहना ये था कि जो अफसरदा यूरेनियम है ईरान के पास, वो अमेरिका हासिल कर ले या तो फिर इसे किसी और मुल्क जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है। फिर दूसरा इनका बड़ा मुतालबा ये था अमेरिका का कि ईरान जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल ना बनाए ताकि इसराइल को हिट ना कर सके। मकसद तो खैर उनका यही था कि अगर मिसाइल बनेंगे तो इसराइल को वो बासानी टारगेट कर सकेगा। जबकि ईरान की जानिब से कह दिया गया था कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन जो यूरेनियम उनके पास मौजूद है वो किसी और मुल्क को मुंतकिल नहीं किया जाएगा। साथ ही जो ईरान पे पाबंदी लगाई गई है 47 ईयर्स की, उन्हें हटाया जाए। जो उनके एसिड फ्रीज है दोहा में और दीगर ममालिक में, उन्हें रिलीज किया जाए और आम ममालिक की तरह ईरान को भी तिजारत की इजाजत दी जाए ताकि वो अपना तेल एक्सपोर्ट कर सके। अगर ये पाबंदियां ईरान पर खत्म हो जाएंगी तो हम देखेंगे कि ईरान की मईशत में बहुत बड़ा इजाफा भी देखने में आएगा। तो इसके अलावा भी काफी सारे मुतालबात थे, लेकिन इन मुतालबात पे जो है वो खासा डिस्कस किया जा रहा था कि ईरान जो है अपनी मिसाइल रेंज को कम करे, यूरेनियम अपरूवल के हवाले से अपना रेशियो बताए और साथ ही इसे किसी और मुल्क जो है वो मुंतकिल किए जाने की भी बात हो रही थी। जबकि ईरान की जानिब से ये वाज़ेह कह दिया गया था और हाँ बिल्कुल हमारा इस चीज को नजरअंदाज भी कर सकते हैं क्योंकि ईरान ने ये भी कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे हमारे खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। जो मिसाइल दागे गए ईरान पे, जो इमारतें जमीन बोस हुई, उनके अखराजात के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से जो जहाज गुजर रहे हैं तो ईरान उसकी मद में टोल या टैक्स आप समझ लें वो कीमत वसूल कर रहा था, जिससे चाइना को भी थोड़ी बहुत तशवीश थी कि ईरान ऐसा ना करे। और अमेरिका की जानिब से भी कहा गया था कि ईरान जो है वो पैसे नहीं ले सकता। और साथ ही ईरान ने ये भी कह दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में जो हमारे खुद मुख्तारी है इसे तमाम ममालिक तस्लीम करें। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखा जाए तो खैर बयान तो वो बहुत देते हैं, लेकिन उनका ये बयान मौजूद है कि मैं और मुश्तबा खामनाई स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को मिल के चलाएंगे, यानी कि ऐसी अहमकाना बातें भी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कर चुके हैं। हमने देखा कि अमेरिका का भी ब्लॉकेड है और अगर ये मुआहदा हो जाता है तो सबसे पहले ये ब्लॉकेड हटाया जाएगा, फिर ईरान की जानिब से भी जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलेगा, फिर यूरेनियम के हवाले से बात होगी, फिर ईरान पे जो सैंक्शन लगाए गए हैं 47 ईयर्स से उन्हें हटाने की बात होगी। आपने देखा होगा गालिबन 3 हफ्ते पहले जो है वो अब्बास इराकी साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं और स्पीकर बागर कालिबाफ, उन्होंने भी दोहा का दौरा किया था और एसिड के हवाले से बात हुई थी। तो अगर ये पाबंदियां हटा दी जाती हैं ईरान के ऊपर तो हम एक बार फिर देखेंगे कि ईरान की मईशत जो है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्पॉइलर मौजूद हैं, जैसे कि भारत का नाम लिया जा रहा है, जैसे कि इस्राइल का नाम लिया जा रहा है कि वो मुआहदा नहीं होने दे सकते। अगर ये मुआहदा हो जाता है पसे पर्दा के हकायक से, डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा ये भी कहा था कि हम अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से भी हमने खलीज ममालिक से बात की, जिसपे खलीज ममालिक के सरबराहान का कुछ खासा रिप्लाई सामने नहीं आया था। ये समझ लें कि उन्हें ये मुआहदा समझ नहीं आया था। तो अब देखना ये है कि अगर इस्राइल की जानिब से और भारत की जानिब से कोई जारियत नहीं की जाती, स्पॉयलर्स अगर इस तमाम मुज़ाकरात को खराब नहीं करते तो पाकिस्तान की जो अमन की कोशिशें हैं वो पूरी दुनिया सराहेगी। और साथ ही देखिए ये पाकिस्तान के मफाद में है, एक तरफ आपका बॉर्डर एंगेज है भारत के साथ, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में आप जानती हैं हालात कैसे हैं। तो अगर ईरान में कोई रिजीम चेंज आता है तो उसमें पाकिस्तान का खासा नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान का भी बॉर्डर एंगेज हो जाए और इस्राइल की जो प्रॉक्सी है वो ईरान में आ जाए। तो अगर ये मुआहदा होता है तो मैं समझती हूँ कि ईरान के लिए तो बेहतर है ही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत बेहतर साबित होगा। जी हमारा ठीक है, बहुत शुक्रिया खतीजा राठौर आपका भी, आफ्ताब मुगेरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।